Hello students, class 10. How did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? जैसे जैसे मंडेला का उम्र और उनका अनुभव बढ़ता गया वैसे वैसे फ्रीडम के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में उनकी समझदारी भी बदलती चली गई। ये कैसे हुआ? ये प्रश्न इट इज़ फ्रॉम नेल्सन मंडेला द प्रोज पीस इन फर्स्ट फ्लाइट एंड दिस प्रोज पीस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम the autobiography of Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. The question is, how did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? Nobody is born with a hunger for freedom. Rather, he is born free. So was Nelson Mandela. मंडेला भी फ्री जन्म हुआ था. He was free to run, to swim, free to roast mealies and free to ride the backs of slow moving bulls. This was his childhood freedom. No problem he faced so long as he obeyed his parents and abided by the customs of his tribe. Later, he felt that his boyhood freedom was an illusion. वो जन्म लिए फ्री थे. अपने मम्मी के झोपड़ी के चारों तरफ, एक झोपड़ी में रहती थी उनकी मम्मी. वो खेलते थे, दौड़ते थे, मकई का भूटा मिलीज रोस्ट करते थे, ब्रॉड बैक्स और भैंस के पीठ पर बैठ के घूमते थे. दीज थिंग्स ही डिड इन हिज चाइल्डहुड एंड नो प्रॉब्लम डिड ही फेस्ड so long as he obeyed his parent and abided by the customs of his tribes. जिस जनजाति से थे उसके नियमों का पालन कर रहे थे और अपने माता पिता को जब तक वो पालन कर रहे थे कोई तकलीफ नहीं हुआ. he enjoyed freedom but later he enjoyed his boyhood freedom was illusion. बाद में उनको पता चला ये बचपन का जो ये फ्रीडम है एक तो एक भ्रम है. इट इज़ नॉट फ्रीडम इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म. ये सच्चाई में फ्रीडम है ही नहीं. ये बचपन का फ्रीडम है ही नहीं. आगे क्या होता है? एज ए स्टूडेंट ही वांटेड फ्रीडम फॉर हिमसेल्फ. ही नीडेड सच ए फ्रीडम टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट ही प्लीज्ड एंड गो वेयर ही चूज. सच फ्रीडम was transitory as he understood it. In his student life, when he was doing law, he needed freedom. He needed freedom to stay out for a long time. He needed freedom to read whatever books, whatever subjects he wanted to read. He needed freedom to stay outside his room so long as he want. He needed to go wherever he chose to go. This freedom he was given, but with the passage of time he realized that such freedom in student life was transitory. उनको पढ़ने के लिए, कहीं जाने के लिए, कुछ करने के लिए फ्रीडम की ज़रूरत थी स्टूडेंट विद्यार्थी जीवन में. तो ये फ्रीडम भी मिला उनको, लेकिन बाद में वो देखते हैं ये फ्रीडम उनको दिया गया ये ट्रांजिटरी फ्रीडम है. जैसे कुछ जुलूस के लिए हम एक फ्रीडम ले लेते हैं, एक परमिशन ले लेते हैं थाना से और जुलूस निकाल देते हैं, और फिर जैसे जुलूस ख़त्म होता है वो फ्रीडम ख़त्म हो जाता है, टाइमिंग ख़त्म हो जाती है, फ्रीडम ख़त्म हो जाता है. दिस टाइप ऑफ फ्रीडम ही वॉज गिवन एंड दिस फ्रीडम ही सेड वॉज ए ट्रांजिटरी फ्रीडम. माने वो ख़त्म होने वाला फ्रीडम है. लेटर इन जोहानिसबर्ग he earned for basic and honorable freedom, illusory freedom, transitory freedom, and third freedom, basic and honorable freedom. Such freedom he wanted to, he desired to have such freedom in Johannesburg when he was in Johannesburg. And why such freedom is required? Such freedom is required to achieve his potential, to earn his keep, to marry and to have a family. Such freedom is enjoyed by every citizens. Basic and honorable freedom. Such freedom helps a person in
यू सी डेवलपिंग हिज पोटेंशियल। अगर भीतर में किसी का इंजीनियर है तो इंजीनियर बनने में वो फ्रीडम उसको मदद करता है। अगर भीतर में किसी का टीचर है तो टीचर डेवलप होता है ऐसे फ्रीडम से, पोटेंशियल होती है, डेवलप होता है। सच फ्रीडम इज़ रिक्वायर्ड टू अर्न हिज कीप। सच फ्रीडम, इस तरह की जो ऑनरेबल एंड बेसिक फ्रीडम है उससे लोग अपनी जीविका कमाते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। सच फ्रीडम इज़ नीडेड टू मैरी एंड फॉर्म ए फैमिली। ऐसे फ्रीडम, बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम हेल्प करते हैं किसी को शादी करना और परिवार बसाने में। लेकिन thus Mandela understood that his boyhood freedom was illusory, his student life freedom was transitory, and he did not have basic and honorable freedom in South Africa. His people, the dark-skinned people of South Africa, did not have basic and honorable freedom to develop his potential, to earn his keep, जीविका कमाने के लिए, to marry and to form a family. ये फ्रीडम ही नहीं था। दिस इज़ द बेसिक फ्रीडम। एवरी सोसाइटी, इन एवरी सोसाइटी एवरी पर्सन नीड्स सच फ्रीडम, वेदर मेल और फीमेल। तो इस तरीके से समय के साथ साथ, उनके अनुभव के साथ साथ, उनका फ्रीडम का जो मीनिंग था, जो अंडरस्टैंडिंग था, वो बदलता चला गया। तो ये प्रश्न है, दूसरा प्रश्न दूसरी वीडियो में। थैंक यू।